नमस्कार दोस्तों, आपका वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल रात यानी कि 24 मई की मिडनाइट, लेट नाइट, तब एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई और वो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बलूचिस्तान के जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ओपन लेटर लिखा है। ये न्यूज़ ब्रेक की है टैग टीवी के ताहिर गोरा जी ने। चलिए देखते हैं ये न्यूज़ है क्या, फिर बात करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ हम टैग टीवी पे आपको दे रहे हैं। इससे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ कहीं नहीं आई। वो ये कि बलोच अमेरिकन कांग्रेस ने आज ही के दिन एक खत लिख दिया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, और उस खत में उन्होंने कहा है कि रिक्वेस्ट फॉर मीनिंगफुल सपोर्ट फॉर अ फ्री बलोचिस्तान। ऑफिशियली बलोच अमेरिकन कांग्रेस ने ऑफिशियली किसी बड़ी बलोच ऑर्गेनाइजेशन ने खत लिख दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आज के दिन कि रिक्वेस्ट फॉर मीनिंगफुल सपोर्ट फॉर अ फ्री बलोचिस्तान। टैग टीवी के राही मैं पूरी दुनिया के मीडिया को और पूरी दुनिया के व्यूअर्स को ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। मुझे अभी थोड़ी देर पहले रज़ाक बलोच साहब ने, जो बलोच अमेरिकन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि हम ये खत टैग टीवी के जरिए आपकी लाइव ट्रांसमिशन के जरिए ब्रॉडकास्ट करना चाह रहे हैं। एक तरह से रिक्वेस्ट, बल्कि मैं तो ये कहूँगा अर्ज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि मीनिंगफुल सपोर्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इस लेटर का जो हेडलाइन है उसमें है मीनिंगफुल सपोर्ट फॉर अ फ्री बलोचिस्तान। मैं अब चाहता हूं कि मैं वो लेटर आपको पढ़ के सुनाऊं। उस लेटर में डॉक्टर ताराचंद ने क्या लिखा है। डॉक्टर ताराचंद उस लेटर में लिखते हैं, श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, डेटेड May 23, 2025, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर मीनिंगफुल सपोर्ट फॉर अ फ्री बलोचिस्तान। इस पर गौर कीजिए कि इसमें जो सब्जेक्ट लाइन है रिक्वेस्ट फॉर मीनिंगफुल सपोर्ट, यानी वो कह रहे हैं कि आप मीनिंगफुल सपोर्ट करें। अब मैं लेटर पढ़ता हूं। योर एक्सीलेंसी, फर्स्ट लेट मी एक्सटेंड my gratitude on behalf of the Baloch community in America for the stance you have taken regarding the plight of the Baloch in Pakistan since 2016. I am Dr. Tara Chand, a former government minister of Balochistan. Your mention of Balochistan in your speech at the Red Fort was welcomed by the Baloch worldwide as a sign of moral support for a nation occupied, subjugated and terrorized by Pakistan. It gave great hope to my Baloch people. Dear sir, since the occupation of our land by the British created country of Pakistan in 1948, my Baloch people have been severely oppressed by the powerful machinery of our rogue state, ruled by a jihadist army. This ill-conceived country is responsible for the disappearances, torture, death and dislocation of thousands of my countrymen. This is part of the strategy adopted by Pakistan to crush the national liberation struggle of the Baloch, which we as a nation have been waging since the occupation of our homeland. The respected Prime Minister, the conflict between the Baloch and Pakistan is actually a story of genocide, as defined by the UN covenants by the Rawalpindi GHQ. However, with the support of powerful nations in the contemporary world, Pakistan is committing atrocities against my Baloch with impunity. The entry of China as a colonial power in the region poses an additional challenge for my Baloch people. The agonizing fact is that at present the national liberation struggle of the Baloch is not being recognized by any nation for obvious political, economic and strategic reasons. Aside from the media in India, there is little voice raised against the atrocities being committed by Pakistan's state in occupied Balochistan. With its immediate riches and strategic location, a free and friendly Balochistan will be a blessing for the peace-loving people of India. However, without meaningful moral and political support at the state level, Pakistan and its allies might crush the national resistance of the Baloch people, leading to a new and darker phase of colonialism in Balochistan. That would be the saddest day for Mother India, as a free Balochistan is the cornerstone of the century, becoming an Indian century. I laud your wise decision of holding the Indus Water Treaty in abeyance and making it clear to the jihadist generals of Pakistan that blood and water cannot flow together. I humbly request that the Indian state and government under your leadership adopt a policy of meaningful political, moral and diplomatic support for the Baloch national resistance against the occupation of Pakistan. I urge you to mention Pakistan occupied Balochistan in your speeches. I assure you this would be a masterstroke against the terrorist entity of Pakistan, which is likely to fall like a house of cards when you may kindly call out Pakistan for occupying Balochistan. Baloch people have great expectations from your leadership. Thank you in anticipation. Sincerely, Dr. Tara Chand Baloch, President, Baloch American Congress.
और उसके नीचे उनका एड्रेस है उनके ऑफिस का, वाशिंगटन में उनका ऑफिस है। ये है इस वक्त की सिचुएशन। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये क्लिप मैंने आपके लिए ली है ताहिर गोदार जी के टेक टीवी से, विद थैंक्स फ्रॉम टेक टीवी। तो बात ऐसी है कि ये एक सच में बहुत बड़ी न्यूज़ है और ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से मैं रोज़ ट्विटर पर इतने सारे ट्वीट देखता हूँ बलूच लोगों के, बलूच लीडर्स के, जो इंडिया से खुलेआम हेल्प मांग रहे हैं। लेकिन क्या हमें देखने की बात यह है कि क्या सच में मोदी गवर्नमेंट या हमारी भारत सरकार उनको खुलेआम सपोर्ट करेगी? मुझे नहीं लगता कि खुलेआम सपोर्ट करेगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर हम बलूचिस्तान में खुलेआम सपोर्ट करेंगे तो भारत और पाकिस्तान की नीतियों में अंतर क्या रह जाएगा। वो भी खुलेआम जम्मू कश्मीर में अपने आतंकवादी भेजते हैं, हालांकि वो कहते हैं कि वो हमारे स्टेट्स नहीं है, लेकिन फिर भी है तो ये एक नंबर 2 का काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी ये इसमें सपोर्ट किया जाएगा बलूचिस्तान के लोगों को, वो इनडायरेक्ट किया जाएगा, विदाउट इंडिया के नाम उसमें आए, जैसा कि अभी तक चल भी रहा है। ये क्लिप दिखाने का पर्पस आपको ये था, जबकि कल पाकिस्तान के ISPR ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने पूरा डेटा दिया है कि कैसे 20 साल से भारत बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है। हम भारतीय या भारत का मीडिया या भारत की सरकार अभी तक दुनिया से ये कहती थी कि हम पाकिस्तान के आतंकवाद से परेशान हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उल्टा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान भारत के आतंकवाद से परेशान है। वो क्लिप्स, वो वीडियो मैं आपके लिए दोबारा एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान के लोगों को बहुत शिद्दत से ज़रूरत है आज़ाद होने की, और उनकी ये डिमांड है कि हमें आज़ादी दी जाए, उसमें भारत उनकी हेल्प करे। और उनका ये कहना है कि भारत और बलूचिस्तान के लोग आपस में मिल के रहेंगे। बलूचिस्तान में कुछ परसेंट हिंदू भी हैं, और जो हमारे हिंदुओं की पावन शक्तिपीठ है देवी की, उसमें से एक शक्तिपीठ बलूचिस्तान में है, हिंगलाज मंदिर, जिसकी पूजा अर्चना और देखरेख सब बलोच लोग करते हैं। रोज़ सुबह शाम आरती भी होती है। तो इससे पता चलता है कि बलोच लोग पाकिस्तान के जैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि मैंने इस लाइन से मेरे को ये याद आया कि ट्विटर पे बहुत सारे बलोच लीडर्स ये लिखते हैं कि बलोच आर नॉट पाकिस्तानी। जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तानियों को जिहादी या आतंकवादी या उनकी आर्मी को आतंकवादी कहते हैं। इस पर कोई नई अपडेट आएगी तो वो मैं लेकर आपके लिए ले आऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमारा हौसला अफजाई होता है। तो देखते रहिए वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।